Good afternoon, students. So today we will start our next topic of this chapter, and that is fixed exchange rate system. So in previous lecture we have already discussed about the uh, foreign exchange rate system, and what is foreign exchange, currency depreciation versus currency appreciation. Okay, so now we will discuss fixed exchange rate system. So let's start. Yes, students. So first is system of exchange rate, fixed, flexible, and managed floating. So students, the three main types of exchange rate system are fixed exchange rate system, flexible fixed exchange rate system, flexible exchange rate system, or you can say floating exchange rate system. Okay, and third is managed floating rate system. So today we will discuss fixed exchange rate system. Okay, so what is fixed exchange rate system? So fixed rate of exchange is that rate of exchange which is fixed by the government. ओके सो स्टूडेंट्स एक्चुअली जो ये पहले क्या था, पहले फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम जो है वो ये चला करता था. ठीक है, अब उसमें क्या था कि उसमें गवर्नमेंट जो है वो एक्सचेंज रेट की वैल्यू को फिक्स कर देती थी. एंड स्टूडेंट्स, एंड यू नो दैट व्हाट इज द एक्सचेंज रेट. ओके, जैसे इस टर्म में आप देख लो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम. सो अब यहाँ पर एक्सचेंज रेट है, तो यू नो दैट व्हाट इज एक्सचेंज रेट. So what is exchange rate? Exchange rate refers to the rate at which one currency is exchanged for the other. And what is the foreign exchange? Foreign exchange refers to all currencies other than the domestic currency of a given country. ओके, सो जब यहाँ पर अब एक्सचेंज रेट के आगे अब हमारे पास क्या टर्म आ गई है? फिक्स. ओके, तो फिक्स यहाँ पर फिक्स आ गई, तो इट मीन्स क्या होगा, जो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, फिक्स कर दिया गया, तो वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया. और ये जो फिक्स किया गया, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये ये किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा. ओके, गवर्नमेंट जो है फिक्स एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट वो फिक्स करती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर yes, fixed exchange rate system refers to a system in which exchange rate for a currency is fixed by the government. So the basic purpose of adopting this system is to ensure stability in foreign trade and capital movement. इस सिस्टम को एडॉप्ट करने का बेसिक पर्पस क्या था कि जो फॉरेन ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट है उसमें स्टेबिलिटी लाना. ओके, एंड टू अचीव स्टेबिलिटी, इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय फॉरेन करेंसी when the exchange rate becomes weaker and sell foreign currency when the rate of exchange gets stronger. And for this, government has to maintain large reserves of the foreign currency to maintain the exchange rate at the level fixed by it. और इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था? जो उसने एक्सचेंज रेट फिक्स किया हुआ है, उस एक्सचेंज रेट को जो फिक्स किया है उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए, वो लेवल बनाए रखने के लिए उसे फॉरेन करेंसी के लार्ज रिजर्व मेंटेन करके रखने पड़ते हैं. And under this system, each country keeps value of its currency fixed in term of some external standard. और इस सिस्टम में जो हर एक कंट्री जो है वो अपनी करेंसी की वैल्यू किसी कुछ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के टर्म्स में फिक्स करती है. So what is external standard? So this external standard can be gold, silver, other pieces metal, another currencies, another countries currencies. Okay, तो कुछ भी हो सकता है ये external standard. So when the value of domestic currency is tied to the value of another currency, जब अगर एक डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को किसी दूसरी करेंसी की वैल्यू से बांध दिया जाए तो इट इज नोन एज पैगिंग.
उसको क्या क्या कहा जाता है, पेगिंग। ओके, कि हमने अपनी कंट्री की, मान लो हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को, मान लो हमने डॉलर की फॉर्म में बता दिया कि भाई ये हमारी करेंसी, हमारी जो रुपीज है वो इतने, $1 जो है इतने रुपीज के इक्वल है, तो हम इज फिक्स्ड इन टर्म ऑफ सम अदर करेंसी और इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। और जब हम क्या करते हैं, एक करेंसी की वैल्यू को किसी दूसरी करेंसी या या हम गोल्ड के टर्म में जब किसी करेंसी की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, तो इट इज नोन एज पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। तो इसको क्या बोला जाएगा, पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। Okay, so students, in other words, you can say in earlier times, exchange rates of all major countries were fixed according to gold standard 1870 to 1914. Okay, so ये gold standard, and second, and the Bretton Woods system 1944 to 1971. So according to gold standard, external values of all the currencies were maintained by fixing their prices. So students, पहले हम gold standard of system, gold standard system exchange rate discuss करें, फिर मैं आपको ये बताऊंगी. So now first of all we will discuss gold standard system of exchange rate. So gold standard system of exchange rate, according to this system, prevalent in most countries prior to 1920s. ओके, 1920s में से पहले ज्यादातर कंट्रीज में ये सिस्टम चलता था. सो गोल्ड वाज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. यानी अलग अलग कंट्रीज की जो करेंसीज के बीच में जो गोल्ड को कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी के रूप में लिया जाता था. And each country was to define value of its currency in terms of gold. और हर एक कंट्री जो है वो अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड के टर्म में डिफाइन करती थी. So accordingly, value of one currency in terms of other currency was fixed considering the gold value of each currency. So yes, take an example. If UK pound is equal to, yes, if UK pound is equal to 4 gram of gold and US dollar is equal to 2 gram of gold. Okay, so इसका मतलब क्या हुआ, 1 UK pound is equal to 2 US dollar. So exchange rate और exchange ratio, आप चाहे exchange rate बोल लें चाहे आप exchange ratio कह लें, between UK pound and US dollar is equal to 1:2. It means 2 US dollars would exchange for 1 UK pound. And this system of exchange was also known as mean per value of exchange or mean parity. And mean value of a currency implied gold value of that currency. So students, you can say according to gold standard, external values of all currencies were maintained by fixing their prices in terms of gold. Okay, and central bank of each country, हर एक country का जो central bank है was ready to buy and sell unlimited quantities of gold at a fixed price in terms of its own currency. ओके, वो अनलिमिटेड क्वांटिटीज जो गोल्ड की बाय एंड सेल करने के लिए रेडी रहता है, किसके ऊपर, जो उसने अपनी करेंसी की अपनी जो उसकी करेंसी है उसकी जो फिक्स जो उसने प्राइस फिक्स किया है उस टर्म में. सो फॉर एग्जांपल, इफ 1 pound is equal to 5 gram of gold and $1 is equal to 2 gram of gold, then exchange rate will be 1 pound is equal to $2.5. Okay. So next is Bretton Woods system of exchange or adjustable peg system of exchange rate. So Bretton Woods system, even when it was fixed system of exchange rate, हालांकि ये भी हमारा क्या है, fixed exchange rate system ही है, but allowed some adjustment. लेकिन
इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट की जा सकती है। जैसे जो हमारा पीछे हमने किया है आपका जो आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट है, उसके अंदर क्या है, एडजस्टमेंट नहीं की जा सकती, लेकिन इसके अंदर जो है कुछ एडजस्टमेंट की जा सकती है। सो इट वाज कॉल्ड एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, and according to this system different countries were pegged or related to one currency that US डॉलर। सो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट जो अलग अलग करेंसी जो हैं, जैसे अभी आपको पता है वो एक करेंसी के साथ अपने को बांध लेती है, टाई कर लेती है, और यहाँ पर जो है वो करेंसी क्या ली गई है, यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर एक्चुअली स्टूडेंट जो क्या होता है कि जो अलग कंट्रीज होती हैं, उन कंट्रीज में जो कंट्री स्ट्रोंग होती है, स्ट्रोंग मतलब जिसकी जीडीपी बहुत हाई होती है, ओके, तो हमेशा ज्यादातर क्या होता है, उसी कंट्री की जो करेंसी होती है उसको स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, ओके, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यूएस जो डॉलर था, मतलब यूएस की जो जीडीपी है वो काफी ज्यादा मतलब बहुत हाई थी, ओके, स्ट्रॉन्ग है वो, तो इसीलिए यहाँ पर यूएस डॉलर को स्टैंडर्ड के रूप में ले लिया गया, एंड उसके साथ जो है डिफरेंट करेंसीज को पैगिंग की गई, उसके साथ बांध दिया गया। सो यूएस डॉलर वाज असाइन, नेक्स्ट फिर क्या हुआ, अब हर एक कंट्री ने अपनी करेंसीज को यूएस डॉलर के साथ किया, पैगिंग की उसकी, एंड यूएस डॉलर वाज असाइन गोल्ड वैल्यूज एट अ फिक्स प्राइस, और यूएस डॉलर को आगे क्या करा, गोल्ड वैल्यू के रूप में उसके प्राइस फिक्स कर दिए गए। सो वैल्यू ऑफ वन करेंसी, value of one currency in term of US dollar ultimately implied value of that currency in terms of gold। अब हम अगर एक करेंसी की वैल्यू को यूएस डॉलर के टर्म में ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो हम वो गोल्ड के टर्म में ही करेंसी की वैल्यू को दिखा रहे हैं, क्योंकि यूएस डॉलर को आगे गोल्ड के रूप में, गोल्ड की वैल्यू में दिखाया गया है, तो अल्टीमेटली तो वो क्या हुआ, गोल्ड के टर्म में ही दूसरे देश की करेंसीज की वैल्यू जो है वो बनाई गई। सो गोल्ड कंटिन्यू टू बी द अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन द एनी टू करेंसीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड जो है ना, वो ही किन्हीं दो करेंसीज के बीच में अल्टीमेटली तो वही यूनिट ऑफ पैरिटी बना रहा, गोल्ड ही। सो एडजस्टमेंट इन पैरिटी वैल्यू ऑफ अ करेंसी वाज पॉसिबल बट ओनली इफ अलाउड बाय आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये एक करेंसी की जो पैरिटी वैल्यू है उसमें एडजस्टमेंट पॉसिबल थी, कब पॉसिबल थी, अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो उसकी परमिशन लेनी होगी, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर परमिशन दे देता है जितनी भी एडजस्टमेंट की, तब वो पैरिटी वैल्यू को, एक करेंसी की पैरिटी वैल्यू जो है उसमें एडजस्टमेंट की जा सकती थी। सो इन अदर वर्ड यू कैन से दैट कि according to Bretton Woods standard, gold was replaced by US dollar as the core of system, and under this system all currencies were pegged or related to US dollar at a fixed exchange rate, and this system gave birth to International Monetary Fund, and at the central institution in the international monetary system। तो एक तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के रूप में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जन्म हुआ यहाँ से, ओके। Yes, next is merits or disadvantages, advantages of fixed exchange rate system। सो स्टूडेंट्स एक्चुअली आपको पता ही है, जब भी कोई भी टॉपिक है, कुछ भी हो, उसकी चाहे हम ही हैं, हमारे में भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी और कुछ बुराइयाँ साथ साथ चलती हैं। तो ऐसे ही हर एक सिस्टम में कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों साथ साथ चलती हैं। तो हम यहाँ पर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जो है इनकी डिस्कस करेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की, क्योंकि जब हम इसके डिमेरिट्स को डिस्कस करेंगे देन तब हम ये पता हो चलेगा कि हमने जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को क्यों हमने अडॉप्ट किया। सो मेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो फर्स्ट इज स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। यस, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि देयर इज नो अनसर्टेनिटी।
अनसर्टेनिटी तो रह ही नहीं जाती यहाँ पर, क्योंकि फिक्स कर दिया गया एक्सचेंज रेट। अब जब फ्लक्चुएट ही नहीं होगा एक्सचेंज रेट, सबको पता है कि इस कंट्री की जो एक्सचेंज करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है, करेंसी की वैल्यू इतनी है, तो एक्सचेंज रेट जब सबको पता है तो अनसर्टेनिटी की तो बात ही नहीं आई। एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज रेट विच प्रमोट्स द फॉरेन ट्रेड, इससे क्या होगा, अब जब ये स्टेबल बना रहेगा तो फॉरेन ट्रेड भी प्रमोट होगा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इज प्रमोटेड, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट होती है इससे, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम से। कैसे कि इट क्रिएट्स कंडीशंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल बिटवीन नेशन, ये नेशंस के बीच में फॉरेन कैपिटल के ये जो फ्लो है उसको स्मूथ कर देती है, मतलब इस तरह की कंडीशंस क्रिएट कर देती है कि स्मूथली फ्लो होता है फॉरेन कैपिटल्स का नेशंस के बीच में। एंड बोथ लैंडर्स एंड बोरोवर्स will not be prepared to lend or borrow in order to make long term investment if they are not sure about the rate of exchange। अगर मान लो उनको रेट ऑफ एक्सचेंज के बारे में वो श्योर ही ना हो कोई, ओके, तो उससे क्या होगा, जो लैंडर एंड बोरोवर्स हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अगर वो श्योर नहीं है रेट ऑफ एक्सचेंज को लेकर। सो अ स्टेबल एक्सचेंज रेट प्रमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। सो ये क्या करता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है एक स्टेबल एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट इज प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड, सो इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल दैट द एग्जिस्टिंग रेट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, क्योंकि लोगों के बीच में अभी कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया ना कि भाई जो एग्जिस्टिंग रेट है वो आगे फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा, तो रिस्क नाम की चीज तो है ही नहीं यहाँ पर। सो क्या होगा उससे, जब वो सो एज अ रिजल्ट फॉरेन ट्रेड ऑफ कंट्री फ्लोज मोर क्विकली एंड स्मूथली, तो फॉरेन ट्रेड और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। नेक्स्ट इज प्रिवेंट स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, जो सट्टेबाजी वाली एक्टिविटीज होती हैं। सो एज एक्सचेंज रेट इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट, सो इट एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में जो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि सट्टा वहीं लगाया जाता है जहाँ अनसर्टेनिटी होती है। तो यहाँ तो सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी तो है ही नहीं, यहाँ पर फिक्स है सब कुछ। तो ये जो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स है उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल एलिमिनेट कर दी जाती है यहाँ पर। एंड द नेक्स्ट इज coordination of macroeconomic policies. So since the world is economically interdependent, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है, एंड देयर इज अ नीड टू कोऑर्डिनेट द मैक्रो पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन ऑर्डर टू कीप द एक्सचेंज रेट फिक्स, और इसीलिए जो डिफरेंट कंट्रीज की जो मैक्रो पॉलिसीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, किस चीज के लिए, एक्सचेंज रेट, जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसको उसको बनाए रखने के लिए। सो इट प्रिवेंट कंट्रीज फ्रॉम अंडरटेकिंग आर्बिट्रेरी एंड कम्पिटिटिव depreciation or devaluation of their currencies which would be disadvantageous to their trading partners। तो ये किस चीज से उसकी सुरक्षा करता है, जो कंट्रीज, मान लो कोई कंट्रीज क्या करती हैं, मनमानी करने लग जाती हैं, या मतलब जैसे करेंसीज, किसी करेंसीज की वैल्यू को डिवैल्यूएट कर दें, डेप्रिशिएट कर दें, तो उस तरह की जो रिस्क होते हैं वो यहाँ से उनसे ये सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनकी वजह से उनके जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके लिए ये नुकसानदायक हो जाएंगे आगे जाकर, तो उस चीज से ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिमेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो डिमेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, यस, फर्स्ट इज ह्यूज फॉरेन रिजर्व्स रिक्वायर्ड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का, सबसे बड़ी जो डिमेरिट थी, ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिक्वायर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसीज टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द लेवल फिक्स बाय इट, बहुत ज्यादा उसको फॉरेन करेंसीज के जो रिजर्व हैं वो मेंटेन करके रखने पड़ते थे। सो इट रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ कैपिटल in different parts of the world and hampers the international growth।
जिससे क्या आता था कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में कैपिटल की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई और इसकी वजह से इंटरनेशनल ग्रोथ है उसमें रुकावट आ जाती है। सो सेकंड इज डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पर क्या है, एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है इसके अंदर, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वहां भी डिफिकल्टी आती थी। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन द लेवल एट विच द एक्सचेंज रेट शुड बी फिक्स। वो लेवल डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल होता था जिस पर एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है जाना चाहिए। सो देयर मे बी अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो ये भी हो सकता था कि जो करेंसी जो है वो अंडर इवेल्युएट हो जाए या ओवर वैल्यूएट हो जाए। सो इफ द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड एट अ लेवल विच इज लोअर देन द मार्केट वैल्यू, मान लो जो है आप एक्सचेंज रेट जो है वो उस लेवल पर फिक्स कर देते हो जो मार्केट लेवल से रिजल्ट इन डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इफ इट इज higher than the market level, then it may create inflationary pressure because of surplus in balance of payment. Okay. Next, last is yes, exchange rate are not fixed. So exchange rate fix नहीं हो पाता था यहाँ पर. So pegged या fixed exchange rate are not permanently fixed. Often fluctuations in the international commodity prices and problems in balance of payment compel countries to bring changes in exchange rates. So this makes it difficult to keep the exchange rate fixed. Okay, students. So that's all for today. Have a good day.